نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم اپنی زندگی میں دو ملتے جلتے الفاظ کثرت سے سنتے ہیں، برکت اور کثرت۔ کثرت کا معنی ہے کسی چیز کا مقدار میں یا تعداد میں زیادہ ہونا، تنخواہ زیادہ ہو، سیل زیادہ ہو، آمدن زیادہ ہو، بچے زیادہ ہوں، زمین زیادہ ہو، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ گھر میں مہمانوں نے آنا تھا، گھر والوں کو پتا تھا کہ 4 مہمان آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے احتیاطاً 6 مہمانوں کا کھانا تیار کر لیا۔ مہمان 4 آ گئے اور 4 مہمانوں نے کھا لیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کثرت، کہ 4 مہمانوں کے لیے ہم نے 6 مہمانوں کا کھانا تیار کیا، تو یہ کھانا مقدار میں زیادہ ہوگا، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف گھر والوں کا یہ خیال تھا کہ 2 مہمانوں نے آنا ہے، انہوں نے 2 مہمانوں کا کھانا تیار کیا، اور اللہ کی شان کے 4 مہمان آ گئے۔ اب گھر والوں نے 4 مہمانوں کے سامنے 2 مہمانوں کا کھانا رکھ لیا اور سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑی آمدن زیادہ ضروریات کے لیے کافی ہو گئی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، لیکن 20 تاریخ کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب یہ مزید 10 دن کیسے گزریں گے تاکہ مجھے تنخواہ مل جائے، میرے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اگلے مولوی صاحب کی تنخواہ 15,000 ہے، اور وہ یکم سے لے کے اگلے یکم تک سکون کی زندگی گزارتا ہے، 1 روپیہ بھی کسی کا دینا نہیں ہوتا۔ جس کو 1.5 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے اور وہ پھر بھی اپنی ضروریات کے لیے پریشان رو رہا ہے، یہ کثرت ہے۔ لیکن دوسری جانب کثرت تو نہیں ہے، 15,000 تنخواہ ہے، لیکن زیادہ ضروریات کے لیے پوری ہو رہی ہے، یہ برکت ہے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں اور 4 نالائق ہیں، کام نہیں کرتے، والدین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، یہ کثرت ہے۔ 4 ہیں لیکن کام کے نہیں ہے، ایک ماں باپ ان سے نہیں پالے جا رہے، اور دوسری طرف ایک نوجوان جس کے بوڑھے والدین بھی ہیں، اپنی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، 4 بہنیں بھی ہیں، والدین کی بھی خدمت کر رہا ہے، بیوی بچے بھی خوش ہیں، 4 بہنوں کے ساتھ محبت اور رواداری کا سلوک کر رہا ہے، والدین خوش، بیوی بچے خوش، بہنیں دعائیں دے رہی ہیں، ایک بندہ ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ کثرت نہیں ہے لیکن برکت ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، سیل زیادہ ہونی چاہیے، آمدن زیادہ ہونی چاہیے، زمین زیادہ ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ہماری بھول ہے۔
हमारी गलत फहमी है। कभी भी कसरत में मसाइल का हल नहीं है, बरकत में मसाइल का हल। कसरत में ठीक है वसाइल ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा वसाइल के लिए अल्लाह ताला ज्यादा मसाइल पैदा कर देता है। फिर बंदा वसाइल और बढ़ा देता है, अल्लाह ताला और मसाइल बढ़ा देता है। यूं उस बंदी की पूरी जिंदगी टेंशन में गुजर रही होती है। कसरत है, वसाइल ज्यादा हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अगरचे वसाइल महदूद हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से मसाइल कम कर देता है, उसके वसाइल और महदूद हो जाते हैं। अल्लाह ताला मसाइल और कम कर देता है। अल्लाह ताला की मर्जी है मसाइल बढ़ाए या घटाए। आप लोग नहीं देखते कितने ऐसे घर मौजूद हैं जिनकी आमदन ठीक ठाक है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उनमें से कोई बंदा मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा ना हो और घर में कोई दवाई न आ रही हो। कभी सिरप आ रहे हैं, कभी गोलियां आ रही होती हैं, कभी इंजेक्शन आ रहे होते, कोई ना कोई दवाई घर में आ रही होती है। कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे होते हैं, कभी थानों में खड़े होते हैं, कभी कचहरियों के धक्के खा रहे होते हैं। अब ठीक है इस बंदे के पास वसाइल हैं, लेकिन अल्लाह ने मसाइल बढ़ा दिए। अच्छा भला बेटा दिमाग खराब हो जाता है, कहते अब्बू मुझे नए मॉडल की कार चाहिए वरना मैं खुदकुशी कर दूंगा। अब वालिदैन बेचारे रोएंगे या हंसेंगे? वो अपने बेटे को नई मॉडल की कार देंगे क्योंकि बच्चा खुदकुशी करने के लिए तैयार। ये मुसीबत होती है, ये अल्लाह की जानिब से बंदे पर ये चीज मुसल्लत हो जाती है। तो अगरचे वसाइल ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसके मुकाबले में मसाइल और ज्यादा कर देता है। और कितने ऐसे लोग हैं हमारे इस मुआशरे में, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, घर में पेनाडोल की एक गोली भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की मोटर लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमने कब लगाई थी। न कभी ये शिकवा होता है कि पानी नीचे चला गया, न कभी ये शिकवा होता है कि मोटर जल गई, न कभी तार खराब होती है, न कभी स्विच खराब होता है। सालों गुजर जाते हैं, मोटर सही काम कर रही होती। तो इसी को तो बरकत कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसाइल कम कर दिए हैं। एक नेक आदमी ने अपने घर में बरकत की ज्यादा रट लगाई हुई थी, तो बेटे ने कहा कि अब्बू आप हर वक्त बरकत बरकत कहते हैं, ये होती क्या है? तो बाप ने अपने बेटे को हाथ से लिया और घर के कोने में की तरफ ले गया और कहा कि बेटा ये ऊपर क्या चीज है? तो बेटे ने कहा कि अब्बू ये गीजर है। फरमाया कि नहीं ये बरकत है। बेटे ने कहा गीजर है। बाप ने कहा बरकत है। बेटे ने फिर कहा अब्बू गीजर है। बाप ने कहा बेटा बरकत है। अब बेटे ने कहा कि अब्बू मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। तो बाप ने कहा कि बेटा आज से 20 साल पहले मैंने ये गीजर लगवाया और 20 सालों में एक बार भी मिस्त्री को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक काम कर रहा है। इसी को बरकत कहते हैं। ऐसे अल्लाह ताला मसाइल कम कर देता है। न उनके बेटे फजूल खर्ची करते हैं, न बीवी के ज्यादा लंबे चौड़े मुतालबात होते हैं, न फजूल नुमाइश पे पैसा खर्च होता है। अल्लाह ताला उनके मसाइल कम कर देता है। इसी को फिर हम बरकत कहते हैं। मेरे भाइयों, कसरत आंखों से नजर आने वाली चीज है। तनख्वाह ज्यादा आंखों से नजर आ रही है, आमदन ज्यादा आंखों से नजर आ रही है, सेल ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा आंखों से नजर आ रही है। कसरत आंखों से नजर आने वाली चीज है, बरकत आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन कोई भी बंदा आसानी से महसूस कर सकता है। महीनों गुजर जाते हैं, घर में इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कितने ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों के घर में कभी इलेक्ट्रीशियन आ रहे होते हैं, कभी प्लम्बर आ रहे होते हैं, टूटी खराब है तो प्लग खराब है तो फलां चीज खराब है, कभी और मिस्त्री आ रहे होते हैं, कभी डॉक्टर, वरना कोई आमिल तो आ ही रहा होता है। आमिल तो जब आना शुरू कर देते हैं तो जब तक बंदे को निचोड़ न ले तब तक बंदे को छोड़ते नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। वसाइल ज्यादा, लेकिन अल्लाह मसाइल बढ़ा देता है। तो मेरे भाइयों, आप हजरात, बहनें, बेटियां,
कसरत की तरफ तवज्जो देने की बजाय बरकत पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लें। हमारे घर में बरकत आ जाए, रिज़्क में बरकत आ जाए, औलाद में बरकत आ जाए। ये बरकत आ गई तो मसाइल हल हो जाएंगे, सुकून की जिंदगी नसीब हो जाएगी। और ये बरकत कैसे आती है, ये चंद बातें मैंने आपसे अर्ज करनी है कि हम क्या करें, हम कौन से ऐसे अमाल करें कि हमारी जिंदगी में, हमारे अहल अयाल में बरकत आ जाए। तो सबसे पहला काम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तबारकस्मु रब्बिक, बरकत वाला है तेरे रब का नाम। अल्लाह के नाम में बरकत है। अल्लाह के नाम के साथ दोस्ती लगाएं, अल्लाह के नाम को जिंदगी के तमाम कामों का जुज बनाएं। हर वो काम जो आप अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं उसमें बरकत होती है। जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो बरकत उठ जाती है। आप घर में दाखिल होते हैं, मसनून दुआ, बिस्मिल्लाहि वलजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर से बाहर निकलते हैं, बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। आप बैतुल खला में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। आप कमरे में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह। आप बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं तो बिस्मिल्लाह। हर काम जो आप शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह 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 के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। खवातीन को चाहिए कि वो इस चीज का ज्यादा ख्याल रखें। बरकत आज कहते घी आ जाता है, बरकत नहीं है, तो घी का डब्बा खोलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो बरकत आएगी। चीनी का डब्बा खोलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो बरकत आएगी। वो आटा निकालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो बरकत आ जाएगी। पेड़ा बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो बरकत आ जाएगी। रोटी तवे पे डालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो बरकत आ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन ला युब्दअ फीहि बिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता ममहूकुन अन कुल्ले बरकतिन। हर वो काम जो बरकत वाला होता है लेकिन अल्लाह के नाम के साथ शुरू न किया जाए तो वो बेबरकत होता है, हर बरकत से खाली होता है। तो बरकत वाला काम भी अगर बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए तो बरकत से खाली हो जाता है। हम खाना शुरू करते बिस्मिल्लाह पढ़े। मैंने अपने उस्ताद जी रहमहुल्लाह के साथ कई मरतबा खाने की सआदत हासिल हुई, इकट्ठे खाना खाना। तो मैंने देखा इन्हीं दुनिया में लोग शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। जो आम नेक लोग होते हैं वो शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। मैंने अपने उस्ताद जी को देखा, आप हैरान हो जाएंगे, हर लुकमा मुंह में डालने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। जब भी लुकमा मुंह में डालते थे बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब जब इस अंदाज से अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाए तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, तबारकस्मु रब्बिक, बरकत वाला है तेरे रब का नाम। लिहाजा घर में बरकत आ जाएगी, रिज़्क में बरकत आ जाएगी। आप हजरात और खवातीन अल्लाह के नाम के साथ दोस्ती लगाएं, बरकत ही बरकत आप अपनी आंखों से मुशाहदा कर लेंगे। और दूसरी चीज, अल्लाह का कलाम बरकत वाला, अल्लाह का कलाम बरकत वाला। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैक मुबारकुन, ये वो किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है और ये बरकत वाली किताब है। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने मुबारक किताब फरमाया, ये बरकत वाली किताब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, तुम लोग कुरान के साथ बरकत हासिल कर लो क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। मकसद ये है कि घर में अगर कुरान पढ़ा जाए, दुकान में कुरान पढ़ा जाए, फैक्ट्री में बंदा फारिग बैठा हुआ है तो कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दे, फिर आप देखें कि बरकतें कैसे उतरती हैं और हम बरकतों से मालामाल होते हैं। कुरान पाक के साथ दोस्ती लगाएं। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे दिन का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। फजर की नमाज के बाद ये बड़े हजरात बैठ जाते थे मस्जिद में, जब तक कुरान की तिलावत नहीं करते थे मस्जिद से निकलते नहीं थे।
گھر کے اندر خواتین مصلی پہ بیٹھ جاتی تھی فجر کی نماز کے بعد، وہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت پہلے کرتی تھی، اس کے بعد پھر گھر کے کام کاج شروع ہو جاتے تھے۔ اور کیا اچھا زمانہ تھا کہ جب فجر کی نماز کے بعد بندہ گھر میں داخل ہوتا تھا، ادھر اہلیہ بیٹھی ہوئی مصلی پہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ادھر کمرے میں بیٹی موجود ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دوسری جگہ پہ بیٹا موجود ہے وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے آج آنکھیں ترستی ہیں، وہ منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیسے گھر میں ہر کمرے سے، ہر کونے سے، برآمدے سے، ہر طرف سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ برکت حاصل کرے۔ اور وہ زمانہ بھی تھا کہ جب خواتین گھر میں کھانا بناتی تھی تو ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہوتی تھی۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر پارہ مکمل ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کو زندگی کا جز بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ برکت کیسے آتی ہے۔ دکاندار دکان پہ چلے گئے، اب صبح سویرے آپ دکان پہ گئے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو قرآن کا نسخہ وہاں موجود ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب دکان کا ہم نے افتتاح کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے مدرسے کے بچوں کو بلا لیا اور 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھوا لیا، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب دکان کی اینٹ اینٹ میں برکت رچ بس گئی ہے، اب دوبارہ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے، معمول بنائیں۔ دکاندار حضرات جب بھی فارغ ہوتے ہیں تو اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہو تو بس فوراً بندہ قرآن کھولے، 1 رکوع پڑھ لے، 2 رکوع پڑھ لیں، اس کی برکت آپ محسوس کریں گے۔ حالت ہماری یہ ہے، رو رہے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، قرضے ہیں جو چڑھتے جا رہے ہیں، اور پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، قرآن جو غلاف کے اندر بند ہوتا ہے اسی طرح بند پڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ کھولنے کا تکلف نہیں کرتا۔ یہ ہفتے کی بات تو میں نے ویسے کی ہے، ورنہ تو اگر میں مہینہ کہوں تو آپ کہیں گے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھی، شاید کسی نے سمجھانے کے لیے بنائی تھی، کوئی حقیقی نہیں ہوگی، لیکن بچی کو کسی بڑے نے 100 روپے کا نوٹ دیا، بچی پریشان تھی کہ اگر یہ نوٹ میرے بھائی نے دیکھ لیا تو میرا بھائی مجھ سے چھین لے گا اور خرچ کرے گا، لہٰذا اس نے اس نوٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے میز کے دراز میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن ڈر لگا کہ بیٹا میز کا وہ بھائی جو ہے میز کا دراز کھول لے گا، نکال لے گا۔ پھر الماری میں رکھنے کی کوشش کی، پھر کہنے لگی کہ الماری سے بھائی نکال لے گا۔ پھر بکسے میں رکھنے کی کوشش کی، خیال آیا کہ نہیں بکسا بھی کھول لے گا۔ پھر اس کو اچانک ایک آئیڈیا ذہن میں آ گیا کہ اوپر شیلف کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، اس نے قرآن پاک اٹھا لیا، غلاف کھولا، قرآن پاک کے اس غلاف کے اندر نوٹ رکھ لیا، پھر سکون سے کہنے لگی اب میرا نوٹ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ نہ کسی نے قرآن کھولنا ہے نہ میرا نوٹ کہیں غائب ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک شروع کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، برکت آئے گی۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کا نام، ایک اللہ کا کلام۔ تیسری چیز جو برکت کا باعث ہے وہ سلام ہے، سلام کثرت سے کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم علی اہلک یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں، یہ آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ سلام یہ برکت کا باعث ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنی بیوی کو سلام کریں، یہ نہیں فرمایا علی اہلک۔ اہل سے مراد بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، بیوی کو سلام کرے، بچوں کو سلام کرے، والدین موجود ہیں ان کو سلام کریں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں، ایک ایک کمرے میں جھانک کر سب کو سلام کیا کریں، مشکل بھی ہے، مناسب بھی نہیں ہے کہ بندہ ہر کمرے میں جھانکتا ہے سلام کرتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہی بندہ دروازے میں داخل ہو پرجوش انداز میں سلام کرے، اس طرح کہ ہر کمرے تک
सलाम की आवाज पहुंच जाए और हर कमरे के अंदर से सलाम का जवाब आपको मिल जाए। इस अंदाज से अगर हम सलाम का तबादला करेंगे तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल हो जाएगा और बरकतों का हम मुशाहदा करेंगे। शरीयत ने यहां तक हमें बताया कि जब तुम कमरे में दाखिल हो या घर में दाखिल हो, ऐसे घर में जिसमें कोई नहीं है फिर भी सलाम करना है। या अल्लाह, घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, तो हम किसको सलाम करें? अल्लाह ताला फरमाते फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, अपने आप को सलाम किया करो। कमरे में दाखिल हो, कहो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना, हमारी ऊपर सलामती हो, हमारी ऊपर सलामती हो। इस तरह हमने सलाम करना है अपने ऊपर। फायदा किया होगा, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं तहियतन मुबारकतन मिन इंदिल्लाह, तहियतन मिन इंदिल्लाह है मुबारकतन। अब ये जो आप अपने आप को सलाम करते हैं उसका फायदा किया होगा कि अल्लाह ताला आपको जवाब देगा। अब जब अल्लाह आपको जवाब देगा तो फिर अल्लाह का जवाब मुनफरिद होता है। मेरे भाइयों, मैं अगर कहूं कि अस्सलाम वालेकुम तो इसका माना ये है कि मैं आपको दुआ देता हूं कि तुम सलामत रहो। लेकिन जब अल्लाह किसी को कहे कि अस्सलाम वालेकुम तो इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह हमें दुआ देता है। अल्लाह ताला तो दुआ नहीं देता, वो तो फैसला नाफिज करता है। लिहाजा जब अल्लाह कहता है कि अस्सलाम वालेकुम तो इसका माना होता है कि सलामती तुम्हारा मुकद्दर है, सलामती तुम्हारा मुकद्दर है। तो जब हम किसी कमरे में दाखिल हों जिसमें कोई नहीं है फिर भी हम अस्सलाम अलैना कहें ताकि अल्लाह की जानिब से हमें सलाम का जवाब मिले और सलामती हमारा मुकद्दर बन जाए। लिहाजा एक तो अल्लाह का नाम, इसको जिंदगी का लाजिम जुज बनाएं। दूसरा अल्लाह का कलाम, तीसरा सलाम जिंदगी का लाजिम जुज बनाएं। और तीसरी चीज, चौथी चीज, सुबह सवेरे का वक़्त। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूरे का ली उम्मती फी बुकूरेहा, मेरी उम्मत के लिए सुबह सवेरे के वक़्त में बरकत नाजिल कर दी गई है। ये सुबह सवेरे का वक़्त बड़ा बरकत वाला होता है। और एक वक़्त था कि लोग सुबह सवेरे के वक़्त से फ़ायदा उठाया करते। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि बरकत का ये वक़्त हम गफलत की नज़र कर देते हैं और हम बरकतों से महरूम हो जाते हैं। सुबह सवेरे का वक़्त बरकत वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं कारोबार करता हूँ लेकिन कारोबार में फ़ायदा नहीं हो रहा। हुजूर ने फरमाया सुबह सवेरे कारोबार के लिए जाया करो। वो सुबह सवेरे कारोबार के लिए जाता था तो हदीस शरीफ में आया है फ़असरा, वो बंदा मालदार हो गया, वो बंदा मालदार हो गया सुबह सवेरे जाने की वजह से, क्योंकि ये बरकत का वक़्त है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इज़ा सल्लैतुमुल फज्र फला तनामू अन तलबि अर्ज़ाक़िकुम, जब तुम फजर की नमाज पढ़ लो तो फजर के बाद अपना रिज़्क तलाश करने से सोना नहीं है, गोया कि अब आगे फौरन रिज़्क की तलाश शुरू कर दो। हमारे यहाँ बेबरकती की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि आधी रात तक तो हम जाग रहे होते हैं और फैशन बना हुआ है। लोग कहते हैं हम तो रात 1 बजे सोते हैं, हम तो रात 1:30 बजे सोते हैं, और ऐसे फखरिया तौर पे बयान करते हैं जैसे कि कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। कहते क्या करें, हमारे बच्चे नहीं सोते। तो बच्चे तो इसलिए नहीं सोते कि बड़े नहीं सोते। अगर बड़े सो जाएं, लाइटें बंद हो जाएं, अगर सोने का माहौल बन जाए तो बच्चे खुद ब खुद सो जाएंगे। अपने ऊपर तरस खाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों पे तरस खाएं, सेहत उससे मुतासिर हो जाती है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं, कारोबार मुतासिर होते हैं, पूरी मुल्क की मईशत मुतासिर हो जाती है अगर हम रात को देर तक जागते रहते हैं। लिहाजा रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं ताकि जल्दी हम उठ सके सुबह। हमारा हाल ये है कि 1:30 बजे तक, 1 बजे तक तो हम रात को जाग रहे होते हैं। फिर इसके बाद जब हम सो जाते हैं, फिर हम में से कौन इतना मजबूत ईमान वाला है कि वो तहज्जुद के लिए उठ सके? और तहज्जुद तो हमारी जिंदगी से कब की रुखसत हो चुकी है। फजर की नमाज भी रुखसत हो गई। बहुत कम ऐसे होते हैं जो रात 1 बजे सो जाएं,
फिर सुबह फजर की नमाज भी पढ़े। अगर पढ़ते भी हैं तो अपने कमरे में बैठ के बिल्कुल करीब मुसल्ला बिछाते हैं, कोशिश ये होती है कि आंख न खुले, बस वैसी उठक बैठक कर ले, फिर सलाम फेरती फौरन बिस्तर के ऊपर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। ये हमारा हाल बना हुआ है। फिर कहते हैं बरकत नहीं। ये बरकत के वक्त में तो हम गफलत की नींद सो रहे थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत ये बरकत क्या होती है? हजरत ने फरमाया कि बकरी देखी है? उसने कहा हाँ। पूछा कि बकरी एक वक्त में कितने बच्चे देती है? उस बंदे ने कहा कि एक वक्त में एक बच्चा देती है। कभी ऐसा होता है कि 2 बच्चे देती है, बहुत कम ऐसा होता है कि बकरी एक मर्तबा में 3 बच्चे देती है, और 4 मर्तबा तो बिल्कुल नादिर और नायाब होता। फिर पूछा कि अच्छा कुतिया एक वक्त में कितने बच्चे देती है? कुतिया एक वक्त में 8 बच्चे भी दे देती है, 10 भी देती है, कई मर्तबा 12 भी दे देती है। अच्छा, फिर अगली बात पूछी कि बकरे रोजाना कितने ज़बा होते हैं? हजारों की तादाद में, बल्कि आज मैं कहूँ कि लाखों की तादाद में, तो भी गलत नहीं होगा। शादियों पे बकरे ज़बा होते हैं और कुर्बानी पे बकरे ज़बा होते हैं। बच्चा पैदा हुआ अकीके में बकरा ज़बा होता है, कोई बीमार हुआ तो सदके में बकरा ज़बा होता है। और कुत्ते कितने ज़बा होते हैं? कुत्ता कोई ज़बा नहीं होता। ये उस जमाने की बात है जब कुत्ते ज़बा नहीं होते थे। आज भी ज़बा नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत कम, कहीं चोरी छुप के लोग ज़बा करते हैं। जिस तादाद में बकरे ज़बा होते हैं उस तादाद में तो कुत्ते ज़बा नहीं होते। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अच्छा अब ये बताएं कि आपने कभी जिंदगी में कुत्तों का रेवड़ देखा है? कभी नहीं देखा। अच्छा कभी बकरों का रेवड़ देखा है? हाँ, कई मर्तबा हजारों भेड़ बकरियों पर मुश्तमिल रेवड़ देखे हैं। फरमाया कि बकरी की पैदाइश कम, खपत ज्यादा, फिर भी रेवड़ों के रेवड़ आपको नजर आ रहे हैं। कुत्तों की पैदाइश ज्यादा, खपत नहीं है, फिर भी आपको कोई रेवड़ नजर नहीं आता। ये बकरे की जिंदगी में बरकत है और कुत्ता बरकत से महरूम है। बकरों में बरकत है। फिर फरमाया कि इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बकरी रात के अव्वल हिस्से में सो जाती है और तहज्जुद के वक्त जाग जाती है और मैं करना शुरू कर देती है, और कुत्ता पूरी रात जाग रहा होता है, तहज्जुद के वक्त गफलत की नींद सो जाता है। तो जब बरकत का वक्त था उस वक्त बकरी जाग रही थी, कुत्ता सो रहा था। अल्लाह ने बकरी की उम्र में, बकरी की औलाद में बरकत नाजिल कर दी, कुत्तों को बरकत से महरूम कर दिया। सुबह सवेरे का वक्त बरकत वाला होता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त को आप कीमती बनाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त की कसम खाई है, वल फजर, फजर के वक्त की कसम, व सुबह, सुबह के वक्त की कसम। अल्लाह ताला कसमें खाते हैं। ये वक्त इस कदर अहमियत वाला है और हम इस वक्त को ऐसी गफलत के साथ जाया कर देते। फजर के वक्त से फायदा उठाए। तीसरी चीज या 5वीं चीज जिसमें बरकत है वो अपने अकाबिर और बड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। इस जुमले के 2 माने हैं। एक माना तो ये है कि वो लोग जो दीन के एतबार से बड़े होते हैं, कोई बड़ा आलिम है, बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा बुजुर्ग है, अब उनका वजूद बरकत का बाइस है, उनका वजूद बरकत का बाइस है। उनका दामन थाम ले, आपको बरकत नसीब हो जाएगी। एक तो ये माना है। ये जो कहते हैं ना अल्लाह वालों को अपने घर में ले आओ, अल्लाह वालों को दुकान पे बुला लो, अल्लाह वालों को शादी पे बुला लो, बरकत आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, बरकत आती है। ये वो लोग हैं जो दीन के एतबार से बड़े हैं। लेकिन हदीस में ये नहीं कहा कि जो दीन के एतबार से बड़े हैं उनके साथ बरकत है। मुतलकन फरमाया जो बड़े हैं उनके साथ बरकत है। लिहाजा वो हजरात जो कलमा पढ़ पढ़ के अपने बाल सफेद कर चुके हैं, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, ये भी अकाबिर हैं। इनका वजूद भी बरकत का बाइस है। कई मर्तबा हमारे घरों में जो बड़े बड़े होते हैं
बूढ़ी अम्मा होती है, बूढ़ा वालिद होता है, दादा होता है, इनको हम अपने लिए मुसीबत करार देते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बरकत करार दिया है। इनको कभी भी मुसीबत न समझे, बरकत का बायस समझा करें। कितनी मर्तबा हमारे पास लोग आते हैं कि हजरत जब तक वालिद जिंदा थे घर में बरकत ही बरकत थी, जिस दिन से वालिद उठ चुके हैं बरकत उठ चुकी है, कारोबार खराब हो गया, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद खत्म हो गया, बीमारियां बढ़ गई, ये मसला वो मसला। तो मैं बूढ़ी अम्मा जब तक जिंदा थी घर में खुशी थी, राहत थी। जब से हमारी वालदा का जनाजा उठा है तब से हमारे घर से खुशी रुखसत हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल होता है, आपने खुद मुशाहदा किया होगा। और उसकी बुनियादी वजह ये होती, मैं कहा करता हूं कि घर के अफराद के अमाल ऐसे होते हैं कि अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उसी घर में कुछ सफेद बालों वाले होते हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह को सफेद बालों से हया आती है। तो उन्हीं सफेद बालों का हया करते हुए अल्लाह ताला अजाबात को टालता रहता है, रहमतें उतारता है। और जब सफेद बालों वाले उठ जाते हैं फिर अल्लाह के अजाबात के नाजिल होने में कोई रुकावट नहीं होती, फिर घर वाले अजाबात की लपेट में आ जाते हैं। लिहाजा ये बड़े अल्लाह की तरफ से तोहफा है, इनको अपने लिए बाइस बरकत समझे। ये खवातीन बेचारियों की अकल वाकई कमजोर होती है, ये अपने खावन से लड़ती रहती हैं कि इन बूढ़ों के साथ मेरा गुजारा नहीं होता। सास और ससुर बेचारे बूढ़े हैं, पुराना जमाना उन्होंने देखा हुआ है, मुशक्कतें देखी हैं, हया का जमाना देखा हुआ है। लिहाजा वो आजकल की इस मुआशरे को जब देखते हैं तो रोक टोक तो करते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं। अब जब ये बूढ़े रोक टोक करते हैं तो बहू कहती है कि इनके साथ मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे कोई अलग मकान लेके दे दो। बेचारी को पता नहीं है कि ये जो ससुर साहब हैं जिसको आपने अपने लिए मुसीबत समझा हुआ है, इस सूरत में आपके लिए कितनी बरकत का अल्लाह ने इंतजाम किया है। मेरे भाइयों, वल्लाह उस घर के अफराद बरकत से महरूम होते हैं जिस घर में सफेद बालों वाला कोई नहीं होता। इन लोगों की कदर करें, इनकी खिदमत करें, इनको अल्लाह का तोहफा समझते हुए शुक्र अदा किया करें। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जो अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करता था। वालिदैन बूढ़े थे, बहन भाई सारे इकट्ठे थे, लेकिन जब वालिदैन काम काज से बिल्कुल फारिग हो गए तो बहन भाइयों ने मशवरा कर लिया कि हम ये अपना मकान या जो असासे हैं आपस में तकसीम कर लें। चुनांचे तकसीम की बारी जब आ गई तो उस नौजवान ने कहा कि मैं तकसीम करूंगा, शर्त यह है कि अम्मी और अब्बू मेरे होंगे, बाकी मकान और असासे तुम संभाल लो। वो बाकी बहन भाई आमादा हो गए। उस नौजवान ने अम्मी और अब्बू पे कब्जा कर लिया। वो जितना उससे हो सका वो खिदमत करता रहा यहाँ तक कि वालिदैन का इंतकाल हो गया। जब फौत हो गए तो उस नौजवान ने रात को ख्वाब देखा। किसी अल्लाह वाले ने फरमाया कि बेटा, आपने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है, अल्लाह ताला आपको उसका सिला और बदला देना चाहता है। आप सुबह के वक़्त उठे, गांव से बाहर फलां जगह पे एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के नीचे 100 दीनार पड़े हैं, वो 100 दीनार ले लो और अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल करो। नौजवान ने पूछा कि उनमें बरकत होगी? उसने कहा कि बरकत तो नहीं होगी। तो जवाब दिया कि मैंने लेने ही नहीं है। अब सुबह के वक्त बीवी को ख्वाब सुनाया। बीवी ने कहा, खुदा के बंदे 100 दीनार मिल रहे हैं, जाएं उठा लें, जरूरत में इस्तेमाल करेंगे। नौजवान ने कहा कि जब बरकत नहीं है तो मैंने नहीं लेने। अगली रात को फिर ख्वाब नजर आया, वही बंदा, उसी बंदे ने कहा कि पत्थर के नीचे 10 दीनार पड़े हैं, जाओ उठा लो और इस्तेमाल करो। पूछा बरकत होगी? कहने लगा बरकत तो नहीं होगी। जवाब दिया कि मैंने लेने ही नहीं है। जब बरकत नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगली रात को फिर ख्वाब नजर आया, वही अल्लाह वाले ने फरमाया कि बेटा 1 दीनार पड़ा है, वो उठा लो। तो नौजवान ने पूछा कि बरकत होगी? उसने कहा हाँ बरकत होगी। फरमाया हाँ मैं उठा लेता हूँ। सुबह के वक्त उठा,
वहां चला गया, दरख्त के नीचे पत्थर पड़ा था, पत्थर के नीचे एक दीनार रखा हुआ था, वो दीनार उठा लिया। अब वापस आ रहा था, फिर ख्याल आया कि इतना अरसा हो गया मेरी बीवी मेरे बच्चों ने गोश्त नहीं खाया, आज मैं बाजार से गोश्त खरीद के लेके जाता हूं। अब गोश्त खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा, फिर ख्याल आया कि मैं मछली खरीद लेता हूं। एक मछली खरीदी, अपने घर ले गया, उसका पेट चाक कर लिया। एक मछली के अंदर से इतना कीमती हीरा निकल आया कि उस आदमी, उसकी बीवी और उसके बच्चों की पूरी जिंदगी की जरूरियात का इंतजाम हो गया। ये बरकत होती है जो बंदे को मिलती है। लिहाजा अपने बड़ों का वजूद गनीमत समझें, बरकत समझें। वाकई आप इनकी बरकत महसूस करते हैं, और जब ये नहीं होते तो फिर बेबरकती भी लोग महसूस कर लेते हैं। और अगली चीज तकवा परहेजगारी है। तकवा परहेजगारी की वजह से हमारी जिंदगी में बरकत आती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलो अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले लोग ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। तकवा इख्तियार करे, आसमान से बरकतें उतरेंगी, जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। अगर हमने तकवा परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार कर ली, हर गुनाह बरकत को खत्म कर देता है, हर नेक काम बरकत को खींचता है। लिहाजा नेकी तकवा परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार करे, बरकत आएगी। शायद आपको यकीन न आए कि मौलवी साहिबान हर वक्त ये तकवा तकवा की बात करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मस्जिद के इमाम से पूछें, किसी मदरसे के मुदर्रिस से पूछें, किसी दरसगाह के कारी से पूछें कि कारी साहब आपकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, 4 आपके बच्चे हैं, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी गुजर रहे, पता कर लो किसी का 1 रुपया भी मैंने नहीं देना। ये वो बरकत होती है जो उनकी जिंदगियों में होती है, उनके रिज़्क़ में होती है, क्योंकि वो तकवा वाले होते हैं, वो गुनाहों से बचने वाले होते हैं। और अगली चीज जो बरकत वाली है वो खजूर का दरख्त। 2 दरख्त बरकत वाले, एक खजूर का दरख्त, दूसरा जैतून का दरख्त। खजूर का दरख्त बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन शजर शजरतन बरकतुहा कबरकतिल मुस्लिम, दरख्तों में से एक दरख्त है, उसकी बरकत मुसलमान की तरह है। तो गोया कि खजूर के दरख्त की बरकत होती है। मैं कई मरतबा दोस्तों से कहा करता हूँ कि अगर आपका घर बड़ा है और आप किसी कोने में खजूर का दरख्त लगवा सकते हैं तो एक दरख्त लगवाएं। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, आपने चूंकि ये बात पहले किसी से सुनी नहीं होगी इसलिए आप सोच रहे होंगे कि यार नई नई बातें कर रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब कोई हवाई बात नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में बात कर रहा है कि भाई आप अपने घर में खजूर का दरख्त लगवाएं। अगर घर में गुंजाइश नहीं है, साथ कोई जानवरों का बाड़ा है, वहां पे लगवाएं। अगर वहां पे गुंजाइश नहीं है, कोई जमीन है आपकी, जमीन में लगवाएं। अगर वहां पे गुंजाइश नहीं है, जमीन है नहीं, तो इतना कम से कम कर लिया करें कि घर में खजूर के चंद दाने रख लिया करें, फल रख लिया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर है उस घर वाले कभी भूखे नहीं होंगे, कभी भूखे नहीं होंगे। गोया कि खजूर के फल की वजह से बरकत आती है, घर के अफराद कभी भूखे नहीं होते। और अगला दरख्त जिसमें बरकत है वो जैतून है। जैतून के बारे में तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि शजरातिन मुबारकातिन जैतूनतिन, शजरातिन मुबारकातिन जैतून। जैतून का दरख्त ये बरकत वाला दरख्त है। जब बरकत वाला है तो अपने घर में लगाएं, आसानी से आजकल दस्तयाब है, पहले तो ये कम मिलते थे, अब तो बहुत मिल जाते हैं। ना हो सके किसी बड़े गमले में लगा दें, ठीक है, वो फल नहीं देगा, दरख्त तो होगा ना, वो पौधा तो होगा, वो आपके घर में बरकत का बायस बनेगा। नहीं है तो जमीन में लगवाएं। जैतून का दरख्त बरकत वाला है, कुरान इस पे गवाह है। और अगर ये न हो सके तो कम से कम जैतून का तेल घर में रख लिया करें। जैतून का फल
किसी भी सूरत में हो, वो अचार की सूरत में हो, मुरब्बे की सूरत में हो, जिस सूरत में दस्तयाब हो उसी सूरत में आप घर में रख लिया करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई हुई है। एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इद्दहीनु बिहा, तुम लोग जैतून के तेल के साथ मालिश किया करो। आप पाँव की मालिश करें या फिर आप सर की मालिश करें। फ़इन्नहा बरकतुन, ये बरकत वाला है। तो जैतून का दरख्त भी बरकत वाला, जैतून का तेल भी बरकत वाला। कम से कम ये चीज हम अपने घर में रख लिया करें, बरकत आएगी। दो जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत वाले हैं। एक बकरी बरकत वाली, बकरी या भेड़। हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया कि इत्तखिदी गनमन, भेड़ बकरियां पालो, फ़इन्नहा बरकतुन, ये बरकत है, ये बरकत। दूसरा घोड़ा बरकत वाला। आप सोचते होंगे घोड़ा तो बहुत महंगा जानवर है, हर कोई उसको पाल भी नहीं सकता। हकीकत भी यही है, लेकिन सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैल फी नवासीहा अल खैर वल बरकतु इला यौमिल क़ियामा, घोड़ों की पेशानी में खैर भी है, बरकत भी है क़ियामत के दिन तक। गोया कि कभी ऐसा जमाना नहीं आएगा कि घोड़े के अंदर से खैर व बरकत खत्म हो जाएगी। ठीक है, पुराने जमाने में लोग घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर तांगे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब तो न सवारी का जमाना रहा न तांगे का जमाना रहा, फिर भी घोड़े की अहमियत आज भी दुनिया में मुसल्लम है। आपको पता होगा मुख्तलिफ ममालिक में अफवाज में बाकायदा एक शोबा घोड़े का होता है। हमारे अपने मुल्क में फौज में एक घोड़ा एक शोबा घोड़ों का होता है, जिसमें बहुत सारे घोड़े पालते भी हैं, सवारियां की जाती हैं, सवारियां करवाई जाती हैं। क्योंकि दुनिया को पता है कि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां न टैंक पहुंच सकता है, न बख्तरबंद गाड़ी पहुंच सकती है, न वहां पे हेलीकॉप्टर जहाज लैंड कर सकता है, वहां सिर्फ घोड़ा ही पहुंच सकता है। आज भी दुनिया घोड़ों की अहमियत और जरूरत को समझती है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि क़ियामत की सुबह तक घोड़े की पेशानी में खैर भी है और बरकत भी है। बैतुल्लाह में बरकत है, बैतुल्लाह में बरकत है। तफसील का वक़्त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, वो बरकत वाला घर है। अब बैतुल्लाह लोग जाते हैं लेकिन डरते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन दुकान से सीधे सीधे 13, 14, 15 लाख रुपए निकालूंगा, मेरा कारोबार मुतासर हो जाएगा, मैं हज करने तो चला जाऊंगा। भाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुकानदार ने हज के लिए दुकान से पैसे निकाले हों फिर उसका कारोबार मुतासर हो चुका हो। किसी बंदे ने उम्रे के लिए दुकान से पैसे निकाले हों और उसका कारोबार मुतासर हुआ हो, क्योंकि उम्रा और हज की वजह से बरकत रिज़्क़ में, बरकत आती है रिज़्क़ में, कभी भी बरकत में कमी नहीं आती। तो लिहाजा बैतुल्लाह बरकत वाला। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बैतुल्लाह तक तो हमारी रसाई नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है, महल्ले की मस्जिद तो है ना। वो महल्ले की मस्जिद और बैतुल्लाह के दरमियान एक ज़बरदस्त रूहानी ताल्लुक है, एक रूहानी ताल्लुक है। आप जब मस्जिद बनवाते हैं तो कहते हैं कंपास मंगवा लो, किबला नुमा मंगवा लो, और किसी मुफ्ती को बुलाओ ताकि हमें सही किबला बता दे कि बिल्कुल बैतुल्लाह की रुख पे मस्जिद बने, बिल्कुल बैतुल्लाह की रुख पे। क्योंकि पता होता है कि अगर ये मस्जिद बैतुल्लाह की रुख पे है तो वहां से वो सिग्नल सही आते होंगे और यहाँ बरकत पहुंचती होगी। अगर रुख बदल गया तो फिर वो सिग्नल नहीं आते। पुराने जमाने में लोग कमरों की छतों के ऊपर एंटीना लगाया करते थे, तो एंटीने को घुमाते थे, इधर घुमाओ उधर घुमाओ ताकि वो सैटेलाइट के साथ सही रुख सही हो जाए। तो फिर नीचे से एक बंदा बोल रहा होता कि अभी इस तस्वीर सही आ रही है तो इसी जगह पे रोक लो, तो वहां पे रोक लिया करते थे। तो जैसे एंटीना को सैटेलाइट की सीध में रखते हैं तो तस्वीरें सही आती हैं, ऐसे ही बैतुल्लाह की सीध में मस्जिद को रखते हैं तो वहां से बरकतें सही आती हैं। और यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मस्जिदें ये बैतुल्लाह की बेटियां हैं, ये मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। और क़ियामत के दिन ये सारी मस्जिदें बैतुल्लाह में जम कर दी जाएंगी, मिला दी जाएंगी। तो गोया कि बैतुल्लाह और मस्जिद के दरमियान एक ज़बरदस्त मुनासबत है,
ایک اور یہی وجہ ہے کہ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، صرف مسجد کی جگہ پہ برکت نہیں ہوتی، ارد گرد کی آبادی پر بھی برکتیں اترتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے۔ تو مسجد والی جگہ پہ برکت اترتی ہے، ارد گرد والے مقامات پہ برکت اترتی ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے ہم مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ 5 مرتبہ حاضری تو ہم دے دیا کریں، اس کے علاوہ بھی مسجد میں وقت دیں، ویسے بیٹا کریں، تلاوت کریں، اعمال کیا کریں، دین کے اعمال کیا کریں، یوں انشاءاللہ پھر زندگی میں، صحت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ یہ دوست احباب شدید گرمی کے باوجود دور قریب سے چل کے آئے، بہنیں بیٹیاں بھی چل کے آئی ہیں۔ پیارے اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، گھر بار کی خوشیاں نصیب فرما، صحت اور رزق کی خوشیاں نصیب فرما۔ تمام احباب کے گھروں میں، صحت میں، اہل و عیال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت نازل فرما، حلال فراخ کشادہ رزق نصیب فرما، تنگی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما۔ تمام احباب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہمارے معزز میزبان ملک اشرف صاحب نے محبت اور خلوص سے بلایا، پیارے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلے عطا فرما۔ ہمیں خوش کیا تو ان کو خوشیاں عطا فرما۔ ان کی جو بھی کوششیں کاوشیں ہیں سب کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ان کے گھر میں، رزق میں، صحت میں برکت نازل فرما۔ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ان کو مأمون و محفوظ فرما۔ ان کی اولاد کو مأمون و محفوظ فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو مأمون و محفوظ فرما۔ اور کریم پروردگار، اس مسجد کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں تمام تر خدمات کو قبول فرما۔ جو انہوں نے جگہ دی ہے، سرمایہ لگایا ہے، اللہ یہ مسجد ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور قیامت کے دن عالی شان محلات کے ملنے کا باعث بنا۔ مسجد کا جو کام باقی ہے اس کام کی تکمیل میں آسانیاں پیدا فرما۔ پھر اس مسجد کو نیک لوگوں کے ساتھ، دین کے کام کے ساتھ آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔